Last time we did up to reactivity series. Now, what is reactivity series? Hundreds of times this particular experiment has been done by scientists. Hundreds of times. And when they continuously repeat the experiment and they record the results, they find out who is the most reactive metal and who is the least reactive metal. और ये कैसे डिसाइड होता है? फॉर एग्जाम्पल यहां पे था आयन अकेला कॉपर सल्फेट सॉल्ट, देन दे ऑब्जर्व क्या सल्फेट कॉपर को छोड़ के आयन के पास जाता है? अगर हां तो आयन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. Then they take copper and zinc sulfate, and while doing this experiment they find out कि क्या सल्फेट अपनी जगह छोड़ के कॉपर के साथ जाएगा? तो आंसर इज नो रिएक्शन. और नो रिएक्शन का मतलब सल्फेट जिंक को नहीं छोड़ता, सो जिंक इज ऑल्सो मोर एक्टिव देन कॉपर. फिर कॉपर एंड सिल्वर सल्फेट, क्या सल्फेट सिल्वर को छोड़ के कॉपर के पास जाएगा? हाँ जाएगा. कॉपर सल्फेट और सिल्वर अकेला पड़ गया, देयरफॉर कॉपर इज मोर पावरफुल देन सिल्वर. तो ये करते 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 फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन दे फाइंड आउट द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज. आयन मोर देन कॉपर, zinc also more than copper, but copper more than iron, अरे सिल्वर. फिर आयन और जिंक के बीच में कंपटीशन करेंगे. आयन सल्फेट और जिंक में क्या सल्फेट छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, अकॉर्डिंगली उसकी सीक्वेंस डिसाइड होती है. सो while doing this experiment 100 times they finally found out the reactivity series that the most reactive metal is potassium. सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, मर्क्यूरी सल्फेट, सिल्वर सल्फेट, गोल्ड सल्फेट, कोई भी सॉल्ट लो पोटेशियम सल्फेट छीन लेता है. पोटेशियम सबके पास से सल्फेट छीन लेता है, मतलब वो सबसे ज्यादा पावरफुल है. और गोल्ड का एग्जैक्ट उल्टा हिसाब है, कोई भी सॉल्ट लो गोल्ड कुछ छीन नहीं सकता, देयरफॉर गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव. That is reactivity series, and lot of questions will be asked, so better by heart it. How do metals and non-metals react? Now this is a very basic topic of chemistry, and therefore I am going to explain it to you like you don't know anything. Periodic table has mainly two parts: मेटल्स, नॉन मेटल्स. एक होता है सेमी मेटल, लेकिन वो अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं. इन द पीरियोडिक टेबल देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. तुम्हारे एटम में 7 न्यूट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन है. टोटल चार्ज 0 है, 7 पॉजिटिव 7 नेगेटिव. बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, you get converted to 7 neutrons, 6 electrons and 7 protons. और 6 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन मतलब -6 and +7, your overall charge becomes +1. मतलब तुम्हारा नाम जो भी था तब चार्ज 0 था, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयन, व्हाटएवर. बट जब तुम डोनेट करते हो
तो तुम्हारे नाम के ऊपर +1 आ जाता है बिकॉज यू हैव गिवन 1 इलेक्ट्रॉन. एंड व्हेन यू गिव 1 इलेक्ट्रॉन, negativity decreases, positivity increases, +1. But what happens when you donate 2 electrons? So let's have a random example. There are 15 neutrons in an atom, 15 electrons and 15 protons. Overall charge 0. But when you donate 2 electrons, now 15 neutrons, 13 electrons and 15 protons. Overall charge becomes +2 because electrons -13 है और protons +15. Therefore, whatever you were called, now you will be called the same with a +2 on top. This is called atom. This is called ion. And ions are formed by donating electrons, but not only donating electrons. Sometimes you can accept electrons also. For example, if I have an atom with 8 neutron, 8 electron, 8 proton, overall charge is 0. But when it accepts 1 electron, now it has 8 neutron, 9 electron and 8 proton. Overall charge becomes -1 because 9 electrons is -9 and 8 protons is +8. -9 + 8 -1. इसका जो भी नाम था, that was his name. But after accepting 1 electron, it becomes y -1. When it was neutral, it was called atom. But when it accepted 1 electron, it became ion. Atoms are neutral. Ions are charged. Atoms are neutral, but वही atom का ion बनेगा तो charged. Positively charged ions are called cations. And negatively charged ions are called anions. And it's a universal truth that positive, negative attract each other. And this force of attraction is called ionic bond. Ionic bond एक tight bond है जो दो चीज को अलग नहीं होने देता. और क्योंकि अलग नहीं होने देता, therefore we have different types of compounds. The simplest compound is salt. Salt is an ionic compound where sodium and chlorine are living together. But sodium chlorine को पकड़ के कौन रखता है? Ionic bond. क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन है. क्यों? उसकी स्टोरी अब मैं डिटेल में बताने जा रहा हूं. So let me continue what I was telling here. Metals always donate electron, and when you donate electron, you become positive ions, and positive ions are called cations. Non-metals always accept electron and become negative ions, and negative ions are called anions, and anions and cations have super duper attraction called ionic bond. Textbook has 2 examples which will do of how ionic bond is formed between sodium and chlorine. The story starts something like this, that once upon a time there was sodium whose atomic number matlab Z was 23. No, 11. उसका mass 23 है. So once upon a time there was sodium whose atomic number was 11. And therefore the electronic configuration was 2,8,1. It was not stable because to achieve stability you have to have 8 electrons in the outer orbit. तो सोडियम ढूंढ रहा था किसी को जिसको वो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे. दूसरी तरफ दुनिया में कहीं पे एक क्लोरीन घूम रहा था. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 and the electronic configuration of chlorine is 2, 8 and 7.
and it is not stable. To achieve stability you have to have 8 electrons. तो क्लोरीन कोई ऐसा ढूंढ रहा था जो उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे. एंड समहाउ सोडियम एंड क्लोरीन हैपन टू कम क्लोज. और जैसे ही नजदीक आए सोडियम और क्लोरीन की जोड़ी बन गई, बिकॉज सोडियम को एक देना था और क्लोरीन को एक लेना था. सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, वो कैसे शो करेंगे, टेक्स्ट बुक में भी दिखाया है साइड में, Na becomes Na plus and donates 1 इलेक्ट्रॉन. सोडियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो वो सोडियम प्लस आयन बन गया. एंड क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो वो क्लोरीन माइनस बन गया. सोडियम एटम वॉज 281, बट एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद 28 बन गया, हैप्पी एंड स्टेबल. क्लोरीन वॉज 287, बट एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो 288 हो गया है, हैप्पी एंड स्टेबल. It's like a business deal. Do you want 1 electron? Yes, I want 1 electron. Okay, take it. Okay, give it. And take it, give it के बाद sodium becomes sodium ion, chlorine becomes chlorine ion. Thank you, bye bye बोलते समय last time they shake hands. Thank you. It was a pleasure doing business with you. बोलते बोलते जब हैंडशेक किया, वो हैंडशेक कभी छूटा ही नहीं. इट बिकेम अ परमानेंट बॉन्ड. वाई? बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर. वो हाथ छुड़ा नहीं पाए. अब द स्टेबिलिटी विच दे हैव अचीव्ड कम्स विद अ कर्स, एंड द कर्स इज दे हैव टू लिव टुगेदर. दे कैन नॉट गो अवे फ्रॉम ईच अदर. दैट्स द स्टोरी ऑफ आयोनिक बॉन्ड, वेयर सोडियम एटम डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर ऑर्बिट to chlorine, so that chlorine has 8 and sodium also has 8, but in that process it becomes Na plus and Cl minus, and therefore they have to live permanently together with an ionic bond. मैग्नीशियम क्लोराइड की स्टोरी अब बताते हैं. एक था मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर था 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, एंड इट वाज हंग्री टू डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो मैग्नीशियम एटम मैग्नीशियम 2 प्लस आयन बन जाएगा अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे. किंगडम के दूसरी तरफ था क्लोरीन. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर था 17, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287. क्लोरीन वाज सर्चिंग कि कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो Cl माइनस बन जाए, विच इज स्टेबल. बट नहीं, एंड वन डे मैग्नीशियम एंड क्लोरीन मीट्स. डू यू थिंक दे विल डू बिजनेस? No. Magnesium is trying to sell or push 2 electrons. ले ले 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, लेकिन क्लोरीन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, बोले मुझे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए. Therefore this deal does not go through. But एन मौके पे एक और क्लोरीन आ जाता है, saying wait, I will combine with another chlorine and take 1 more electron. So Mg wanted to give 2, and those 2 electrons are taken by 2 chlorines each. Therefore there is a perfect match, and that becomes a compound or a molecule. So chlorine plus 1 electron becomes chlorine minus. So these 2 electrons with magnesium donated, one goes to 1 chlorine, another goes to another chlorine. और जैसे ही Mg2 plus और 2 Cl माइनस एक दूसरे को बाय बाय बोलने की ट्राई करते हैं, तब तक तो परमानेंट बंधन में बंध चुके हैं, एंड इट्स MgCl2
an ionic compound. Now they cannot go away from each other because they have become charged and opposite charges attract each other. इसमें एक डॉट स्ट्रक्चर भी आएगा जो तुम्हें ड्रॉ करना आना चाहिए. मैग्नीशियम configuration is 282. So Mg has 2 electrons in the outermost orbit plus chlorine has 7. This electron gets donated here. This electron gets donated here. Sorry. Here. So that chlorine has 8 electrons. This chlorine has 8 electrons and Mg का अगर 2 चला जाए, ये 2 चले जाए, तो उसके पास भी 8 बचेंगे. That's the story of magnesium chloride ionic bond formation which you have to by heart. Not very difficult. अब आयोनिक कंपाउंड्स की स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज. सो देयर इज एन एक्टिविटी वेयर यू हैव टू टेक डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड एंड हीट देम, एंड व्हेन यू हीट आयोनिक कंपाउंड्स यू विल रियलाइज दैट देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई. ये एक्टिविटी में कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज कम्युनिकेट कर रहे हैं. द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स आर वेरी हाई. एंड सेकेंड एक्टिविटी where electricity is trying to be passed, and the conclusion is they are always good conductors of electricity. Why? Because whenever that salt NaCl, MgCl2, CaCl2, AlCl3, कोई भी सॉल्ट, बहुत सारे हजारों सॉल्ट्स बन सकते हैं. एनी सॉल्ट व्हेन पुट इन वाटर it breaks into 2 parts. It breaks into a positive and a negative ion. और ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होना पॉसिबल है. सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी with high melting point and boiling point. The real answer is here. Properties of ionic compounds. Make your own Pressy notes and by heart this. Physical nature. Ionic compounds physically कैसे होते हैं? Ionic compounds are solids. They are somewhat hard because of strong force of attraction between positive and negative ions. They have strong force and which cannot be broken easily. These compounds are generally brittle. Hard है लेकिन टूट जाते हैं. For example, this is plastic. Plastic is hard, but that does not mean that it cannot break. ये टूट सकता है प्लास्टिक का केस. बट मेटल है तो मेटल इज हार्ड एंड नॉट ब्रिटल. मेटल को तोड़ नहीं सकते, काटना पड़ता है. सो दे आर हार्ड बट दे आर ब्रिटल एंड दे ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड. Melting point, boiling point of ionic compounds is high. This is because large amount of energy is required to break the strong inter-ionic attraction. Ionic bond बहुत strong होता है और ये ionic bond तोड़ने के लिए बहुत गर्मी देनी पड़ती है. बहुत गर्मी का मतलब है high melting point and boiling point. Solubility, dissolve होते हैं क्या? Electrovalent compounds are generally soluble in water. Remember, salt is an ionic compound and salt can be easily dissolved in water, so they are soluble in water, but they are insoluble in kerosene, petrol, etc. Alcohol maybe. So salts are soluble in water but not soluble in other solvents, other liquids. Next, conduction of electricity.
The conduction of electricity through a solution involves the movement of charged particles. A solution of ionic compound in water contains ions which moves to the opposite electrons when electricity is passed through the solution. Ionic compound को पानी में डालो तो आयन छूटे पड़ जाते, which I already told you. So take salt and put in water. Literally Na and Cl will split into two parts and will float in water. And that floating thing helps it to become good conductor of electricity. But is salt a good conductor in solid state? Answer is no. It is not possible because there are no ions and the structure is rigid. Rigid structure है, सब अपने अपनी पोजीशन में बैठे हैं in solid state, and therefore in solid state a salt is a bad conductor of electricity. What about molten state? Then it is again good conductor of electricity. तीन है salt, solid, bad conductor, molten, good conductor, solution मतलब dissolved in water, definitely good conductor. So remember the physical properties of ionic compounds. It's very easy and discusses few basic things. Next topic, and I think this is the last topic, but it's a long one. We use a lot of metals in our day-to-day life. Iron, copper, zinc, sulfur, molybdenum, even non-metals, we use all of them in our daily life in something or the other. ये सब आते कहाँ से? पूरे पीरियोडिक के सारे एलिमेंट्स में से 90% come from the soil, earth, and 10% comes from water and air. Hydrosphere, atmosphere, lithosphere. तो 90% पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट जमीन खोद के मिलते हैं. गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम सब नीचे से आता है, हवा में से नहीं. हवा में से ऑक्सीजन मिलता है, हवा में से नाइट्रोजन, क्लोरीन, एक दो और गैसेस. सो अर्थ इज अ बिग स्टोर हाउस, और अर्थ के अंदर पड़े पड़े एलिमेंट्स को चर्बी चढ़ जाती. तो अर्थ के अंदर है आयन, ऑक्सीजन भी है, कॉपर है, जिंक है, मॉलिब्डेनम है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सल्फर है, फास्फोरस है, बहुत कुछ है. और ये सब बहुत कुछ जमीन के अंदर हजारों करोड़ों साल से पड़ा हुआ, और हजारों करोड़ों साल में आयन हैज कंबाइंड विथ ऑक्सीजन to form Fe2O3. Copper has combined with oxygen to form CuO. Zinc has combined with sulfur and oxygen to form zinc sulfate. Zinc has combined with phosphorus and oxygen to form zinc phosphate. Iodine has combined with copper to form copper iodide. Iron and chlorine has become iron chloride. बड़े बड़े कंपाउंड्स बन गए. तो जब हम जमीन खोदते हैं तो सब कुछ प्योर नहीं मिलता है. प्योर मिलता है गोल्ड, बिकॉज गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव. ट्राई टू क्रिएट कनेक्शंस बिटवीन द नॉलेज यू हैव. रिएक्टिविटी सीरीज में गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव मेटल है. उसको किसी के साथ रिएक्ट करने में इंटरेस्ट नहीं है. वो किसी का सल्फेट छीन नहीं सकता है, किसी से क्लोरीन छीन नहीं सकता है, वो रिएक्ट नहीं करता है. इसलिए जब जमीन खोदते हैं तो करोड़ों साल बाद भी गोल्ड है. इट यू रिसीव इट इन प्योर फॉर्मेट. यू डोंट हैव गोल्ड ऑक्साइड, गोल्ड क्लोराइड, गोल्ड सल्फेट. नो. सिल्वर भी एक ऐसा है जो प्योर है, और एक कॉपर है जो कुछ जगहों पे प्योर मिल, बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव. बट इसके कंपैरिजन में सोडियम पोटेशियम ढूंढने जाओ तो प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव. पड़े पड़े करोड़ों साल में कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ कंबाइन होने का चांस मिला है और कंबाइन होके बैठे. सो दिस सेक्शन इज टेलिंग यू
what we take out from the earth and how do we purify it. तो जमीन में खड्डा खोद के जो चीज हमें मिलती है उसको कहते हैं ओर, एंड दिस ओर इज प्योरिफाइड to finally get the metal which we can use. So this entire section is about finding an ore, purifying it and getting pure metal. So occurrence of metals में extraction, you have to read 3.4, 3.4.1 and make your own small objective notes. Tomorrow's quiz will contain questions from this. यहां से मैं बताना शुरू कर रहा हूं. हाँ, एक था चुन्नू. चुन्नू बड़ा बदमाश था और चुन्नू के हाथ में लग गई एक ट्यूब. चुन्नू ने ट्यूब को जोर से दबाया और ट्यूब के अंदर से निकला ग्लू. ग्लू निकला तो निकला, फिर चुन्नू भाई साहब ग्लू के ऊपर हाथ दे के बैठ गए और उनके हाथ गए चिपक और अब चुन्नू भाई साहब फंस गए. बुलाया मम्मी को. मम्मी का काम है चुन्नू के हाथों को ग्लू से अलग करना. बट देर आर मल्टीपल टेक्निक्स. इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन कि कौन सा ग्लू लेके चुन्नू खेल रहा था. अगर चुन्नू के पास फेविकॉल है तो मम्मी जो चुन्नू के हाथ चिपक गए जमीन से या व्हाटएवर, वो कैसे निकालेगी? जस्ट बाय सिंपली अप्लाइंग प्रेशर, निकल. बट अगर चुन्नू के हाथ में फेविकॉल की जगह पे एराडाइट करके एक एडिसिव आता है, फर्नीचर वाले यूज करते हैं, अगर ये है तो मम्मी को यूज करना पड़ेगा पेट्रोल या केरोसिन, जिससे ये थोड़ा डिसॉल्व हो जाएगा एंड देन शी विल हैव टू अप्लाई प्रेशर. बट अगर चुन्नू के हाथ में फेविक्विक था, चुटकी में चिपका है फेविक्विक, तो मम्मी को पहले चुन्नू के हाथों को गर्म करना पड़ेगा, फिर पेट्रोल डीजल से ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, फिर थोड़ा पानी से कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, फिर प्रेशर अप्लाई करके चुन्नू के हाथ निकलेंगे. The point I'm trying to say here is the glue and the hand are stuck. When something is stuck, it's called a bond. और हर एक बॉन्ड की एक अलग ताकत होती है एंड डिपेंडिंग ऑन दैट ताकत तुम्हें अलग अलग मेथड यूज करनी पड़ती है. केमिस्ट्री के अंदर जमीन में पड़े पड़े आयन हैज क्रिएटेड बॉन्ड विथ क्लोरीन, आयन हैज क्रिएटेड बॉन्ड विथ सल्फर ऑक्सीजन, आयन हैज क्रिएटेड बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, एन नंबर ऑफ थिंग्स. मुझे आयन क्लोराइड, आयन सल्फेट, आयन ऑक्साइड नहीं चाहिए. मुझे मेरा कबाट बनाने का, और कबाट बनाने के लिए मुझे प्योर आयन चाहिए. बट वेयर डू आई गेट प्योर आयन? आई हैव टू गेट इट फ्रॉम हियर. एंड टू गेट प्योर आयन आई हैव टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन क्लोरीन, ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन सल्फर, और उसमें से आयन को छूटा करके निकालना पड़ेगा कि नहीं? That's what we are going to learn now. Techniques of breaking the bonds and getting pure metal. मुझे माउस नहीं चाहिए, मुझे बैटरी चाहिए
जो इसके साथ है, तो इसको खोल के बैटरी को बाहर निकालना आना चाहिए. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, हाउ टू सेपरेट प्योर मेटल्स. एंड मेटल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स. ये चार्ट बाय हार्ट करना तुमको. मेटल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. लो रिएक्टिविटी सीरीज, मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज, हाई रिएक्टिविटी सीरीज. लो रिएक्टिव, दिमाग में फेविकॉल रख, आराम से निकल जाता है, पानी से धो निकल. मीडियम रिएक्टिव सीरीज एराल्डाइट, थोड़ा मेहनत लगता है. एंड हाई रिएक्टिव सीरीज इज फेविक्विक या वेल्डिंग. वेल्डिंग कितना जोरदार होता है, काइंड ऑफ. विच डू यू थिंक इज इजी टू सेपरेट? The low reactivity series metals are easy to separate, and most difficult is high reactivity metals. Okay, low reactivity में सल्फाइड ओर्स है तो रोस्ट करो तो मेटल मिल जाएगा. फिर उसको रिफाइन मतलब प्योरीफाइंग द लास्ट स्टेज, एंड यू आर फ्री. बट अगर मीडियम रिएक्टिविटी और सल्फाइड है तो फिर से उसको रोस्ट करो, उसमें से ऑक्साइड मिलेगा और ऑक्साइड में से प्योर मेटल. बट कार्बोनेट ओर है तो रोस्ट नहीं, कैल्सिनेशन करो, उससे ऑक्साइड मिलेगा, उससे प्योर मेटल मिलेगा. एंड इफ इट इज हाई रिएक्टिविटी मेटल तो रोस्टिंग, कहा गया, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन से कुछ नहीं होगा, तुम्हें इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा, तब जाके प्योर मेटल मिलेगा. थर्ड इज रिडक्शन. Do you see 4 numbers here? These are the 4 things which we are supposed to learn. Roasting, calcination, reduction, electrolysis. तो ये 4 चीजें करके तुम अलग अलग टाइप के मेटल्स को प्योरीफाई करके यूज कर सकते हो. स्टार्टिंग फ्रॉम मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी सीरीज. कीप राइटिंग द रिएक्शंस. सारे रिएक्शंस 5 बार लिखना है, दैट्स योर होमवर्क. एंड मेक योर ओन प्रेसी नोट्स. आई एम सो हैप्पी 1 or 2 students created their pressy notes while the lecture was on. You are supposed to do that. That's the best way to study. If I cannot teach without pen and paper, you cannot learn without pen and paper. उतना याद रखना. बैठे बैठे वीडियो देखने से कुछ नहीं होता. तो लो रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल्स को कैसे सेपरेट प्योर किया जाए. मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर अनरिएक्टिव. The oxides of these metals can be reduced by metals by heating alone. सबसे पहला सिंपल तरीका, अगर जमीन के अंदर से मेटल ऑक्साइड मिला है तो उसको गर्म करो, ऑक्सीजन जाएगा उड़ और तुमको मिलेगा प्योर मेटल. फॉर एग्जाम्पल HgS इज सिन्नाबार, और सिन्नाबार मतलब ओर ऑफ मर्क्यूरी. थर्मोमीटर के लिए मर्क्यूरी चाहिए. मर्क्यूरी के लिए जब खोदते हैं तो मर्क्यूरी नहीं मिलता, सिन्नाबार मिलता. सिन्नाबार मतलब मर्क्यूरी सल्फाइड. और सिन्नाबार को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करो तो मर्क्यूरी ऑक्साइड मिलता है. और वो मर्क्यूरी ऑक्साइड को और गर्म करो तो प्योर मर्क्यूरी और ऑक्सीजन गैस मिलता है. सो दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. यू आर अ बिग बिजनेसमैन, यू गो टू द जंगल एंड स्टार्ट डिगिंग. व्हेन यू डिग you find ores, ore of iron, ore of copper, ore of gold, silver, platinum, whatever. This time you found ore of mercury, means you will purify mercury. Ore of mercury is called cinnabar, which is a sulfide ore. मतलब मर्क्यूरी को सल्फर मिला था करोड़ों साल पहले, वो कंबाइन होके बैठ गए.
मर्क्यूरी सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करो तो मर्क्यूरी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बने, और वो मर्क्यूरी ऑक्साइड को और गर्म करो तो प्योर मर्क्यूरी मिल जाए। खत्म। क्या किया? गर्म किया। ये फेविकॉल जैसा है, इजी, जस्ट हीट इट। सिमिलरली कॉपर सल्फाइड Cu2S भी मिलता है नेचर में। कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ गर्म करो तो कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड को थोड़े और कॉपर सल्फाइड के साथ गर्म करो तो प्योर कॉपर। बाय हार्ट दीज रिएक्शंस, राइट इट 5 टाइम्स। लो रिएक्टिव मेटल्स को कैसे प्योरीफाई करते हैं? बाय हीटिंग। एंड दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड रिडक्शन। ये पूरी प्रोसेस जो गर्म करके कर रहे हैं इज रिडक्शन, स्पेसिफिकली द सेकेंड रिएक्शंस। व्हाई? बिकॉज रिडक्शन का डेफिनेशन होता है रिमूव ऑक्सीजन। तो कैन यू सी, फर्स्ट स्टेज में मर्क्यूरी ऑक्साइड था, आई वॉन्ट टू रिमूव ऑक्सीजन, रिडक्शन मेथड। इसमें भी कॉपर ऑक्साइड बना है, आई वॉन्ट टू रिमूव दिस ऑक्सीजन, इट्स कॉल्ड रिडक्शन। सो लो रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स को सिर्फ रिड्यूस करो, मेटल ऑक्साइड टू मेटल ऑक्सीजन हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड रिडक्शन। खत्म। अब मिडल एक्टिविटी सीरीज। मिडल थोड़े कठिन होते, थोड़े डिफिकल्ट होते, थोड़े अड़ियल टट्टू होते हैं, उनमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। द मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, lead, copper are moderately reactive. These are usually present as sulfides और कार्बोनेट्स। इन सबको सल्फर और कार्बोनेट ने भावुक किया था, इसलिए करोड़ों साल पहले वो मिल के बैठ गए। आयरन सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, आयरन कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, ये सब ओर्स है। और सल्फाइड ओर और कार्बोनेट ओर को डील करने का तरीका बाय हार्ट करना है। कैसे? यहां से शुरू होता है, देखो, राइट डाउन इन योर प्रेसी नोट्स। सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड टू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। फर्स्ट स्ट्रेटेजी, सल्फाइड को ऑक्साइड बनाओ, बहुत सारी हवा और गर्मी। एंड आफ्टर दैट सल्फाइड इज कन्वर्टेड टू ऑक्साइड। ऑक्साइड से डील करना इजी है, जस्ट हीट इट, विच इज कॉल्ड रिडक्शन। बट इंस्टेड ऑफ सल्फाइड, इफ इट इज, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। एक्स्ट्रा हवा में गर्म करना इज कॉल्ड रोस्टिंग। बट व्हाट हैपेंस when there is carbonate ore? Carbonate ores change into oxides by heating strongly in limited air. कार्बोनेट को भी ऑक्साइड बनाना है पहले, और कार्बोनेट को ऑक्साइड बनाने के लिए हवा कम चाहिए लेकिन गर्मी चाहिए, और फिर वो ऑक्साइड को और गर्म करो, विच इज कॉल्ड रिडक्शन। This process is called calcination. So it's not difficult at all. किसी भी मटेरियल को ज्यादा हवा में गर्म करो तो रोस्टिंग, कम हवा में गर्म करो तो कैल्सिनेशन, और सिर्फ गर्म करो तो रिडक्शन। ऑक्साइड को गर्म करो तो रिडक्शन। रिएक्शन देखते हैं, इमीडिएटली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ रोस्टिंग। Roasting means a sulfide ore is heated in presence of excess air. Sulfide, this is excess air. Heat, बन गया जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड उड़ गया। और जिंक ऑक्साइड का क्या करेंगे? नॉर्मल रिडक्शन, हीटेड इन प्रेजेंस। जिंक ऑक्साइड को और गर्म करेंगे तो प्योर जिंक और ऑक्सीजन जाएगा नहीं।
गर्म करेंगे कार्बन के साथ, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करेंगे तो जिंक हो जाएगा फ्री और कार्बन ऑक्सीजन ज्वाइन हो जाएगा. यू हैव सक्सेसफुली प्योरिफाइड जिंक. दैट्स द स्टोरी ऑफ जिंक वाया रोस्टिंग एंड रिडक्शन. ये देखो, जिंक ऑक्साइड, कार्बन becomes pure zinc, carbon monoxide. This is called roasting. This is called reduction, and you have achieved pure zinc. But तुमने जो जमीन खरीदी है वहां जब तुम खोदते हो जिंक ढूंढने के लिए तो तुम्हें जिंक सल्फाइड नहीं मिलता है. तो क्या मिलता है? जिंक कार्बोनेट मिलता है. तो क्या करोगे? कोई प्रॉब्लम नहीं, चेंज द प्रोसीजर. If the soil is giving you zinc carbonate, you heat it in limited air. In fact, no air. देखो कोई ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ गर्म करो तो जिंक कार्बोनेट when heated becomes zinc oxide and carbon dioxide is released. और वो जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करो जो हमें ऑलरेडी आता है by using carbon, so that carbon monoxide goes out, pure zinc remains. All reactions 5 times. रिएक्शन आएंगे तो ही आगे की स्टोरी कुक अप करोगे. सिर्फ टेक्स्ट लिखा होगा केमिस्ट्री में 0 मिलेगा. सो रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, रिडक्शन. एग्जाम्पल जिंक. Besides using carbon to reduce the metal oxides to metal, sometimes displacement reactions can also be used. The highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminium are used as reducing agents. कह रहे हैं जनाब कि जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए और जिंक बनाने के लिए क्या यूज किया था? कार्बन. बट इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी. जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए और प्योरीफाई करने के लिए you can use sodium, potassium, aluminium, because they all are capable of snatching this oxygen away and freeing the zinc. For example, एक बार मैंगनीज ऑक्साइड हाथ में आया. एक फैक्ट्री है वो Mn बनाती है और MnO2 जिंक ऑक्साइड तो कार्बन से निपट लिया, बट मैंगनीज ऑक्साइड को कार्बन से ट्राई किया लेकिन कुछ नहीं हुआ. सोडियम से ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ. पोटेशियम के साथ रिएक्ट करवाया, एल्यूमिनियम के साथ रिजल्ट मिला. सो मैंगनीज ऑक्साइड थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसको एक पावरफुल मेटल एल्यूमिनियम चाहिए ताकि मैंगनीज फ्री हो जाए और Al2O3 बन जाए. तो ऑक्सीजन इज स्नैच्ड अवे बाय एल्यूमिनियम सो दैट वी गेट प्योर मैंगनीज. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन बिकॉज ऑक्सीजन इज टेकन अवे फ्रॉम मैंगनीज. दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन where oxygen is changing its position from manganese to aluminium. तो ये रिडक्शन भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है. जब थोड़ा डिफिकल्ट होता है ऑक्सीजन निकालना तो एल्यूमिनियम की मदद ली जाती है. जैसे यहाँ पे आयन ऑक्साइड, बहुत सारे कंट्रीज में ओर जो निकलता है वो ऑक्साइड होता है. यू नो व्हेन आई वाज टेलिंग यू कि धरती में सब नवरे बैठे थे और कंबाइन हो गए, तो वो स्टोरी में आयन डिड कंबाइन विद ऑक्सीजन ऑल्सो. कहां गया पता नहीं. ये भी देख लो, गोल्ड एंड सिल्वर इतने वेल्ले हैं, उनको किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना है. दे आर फाउंड इन ओरिजिनल स्टेट, प्योर. बट जिंक, आयन, लेड, कॉपर वो रिडक्शन करके मिल सकते हैं. दे आर नॉट इन प्योर फॉर्म. बट पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम प्योर करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है. तो आयन ऑक्साइड को, ऑक्सीजन को जुदा करना डिफिकल्ट होता है, देयरफॉर एल्यूमिनियम की मदद ली जाती है. एल्यूमिनियम एक भाई है, ऑक्सीजन छीनने का काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट किलर. सो
Fe2O3 एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट, आयन हो गया फ्री और Al2O3 ने ऑक्सीजन फंसा लिया, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन। ये रिएक्शन में इतनी ज्यादा हीट निकलती है अपने आप, एक्स्ट्रा हीट इज रिलीज्ड, कि अगर Fe2O3 और एल्यूमिनियम को, दो पाउडर को बस मिक्स कर दो, ट्रेन की पटरी को मेल्ट कर देते हैं। दे लिटरली मेल्ट द रेलवे ट्रैक्स इफ दे मीट ईच अदर, बस मिलना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चैप्टर 1 में सीखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन where so much heat is generated that it is used to join railway tracks or repair the cracked machine parts, called as Thermit reaction. मीडियम मेटल्स का एक लास्ट समरी, वापस एक बार बोल रहा हूं, ये प्रेसी में लिखा हुआ होना चाहिए तुम्हें। मीडियम मतलब मिडल एक्टिविटी। रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल पार्ट में आयन, जिंक, लेड, कॉपर, इसके भी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो, आयन, जिंक, लेड, कॉपर। फी जून में पे करो फी जून में पे करो मतलब आयन, जिंक, lead, copper, whichever way you want to, you know how to make them yourself, but these four are middle of the activity series. They are found in the form of sulfides or carbonates. If it is sulfide तो रोस्टिंग करो, हवा के प्रेजेंस में गर्म करो तो ऑक्साइड बनेगा और ऑक्साइड को रिड्यूस करो। इफ इट इज कार्बोनेट देन हीट इट विदाउट एयर विच इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, वो ऑक्साइड बन जाएगा और ऑक्साइड से प्योर बन जाएगा। एग्जाम्पल जिंक, जिंक सल्फाइड, रोस्टिंग इट बिकम जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस्ड बाय कार्बन टू जिंक। बट जिंक कार्बोनेट का कैल्सिनेशन करो टू जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक बाय कार्बन। बट हर बार कार्बन मतलब कोक, कार्बन मतलब कोक काम में आता नहीं। तो क्या करेंगे, मोर पावरफुल मेटल्स विल बी यूज्ड फॉर रिडक्शन एंड मोर पावरफुल मेटल्स आर सोडियम, पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम दो बार काम आता है। मैंगनीज ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मैंगनीज and iron oxide is reduced to iron, both time by aluminium. And the last section is top of the activity series. The metals which are at top of the activity series are highly reactive. They are super strong. उन्होंने अगर ऑक्सीजन को पकड़ लिया तो पकड़ लिया, बोले छोड़ेंगे नहीं, जो करना है कर लो। और हमने जो करना था कर लिया और सच में उन्होंने नहीं छोड़ा। बट when electricity was invented 150 years ago, तब फिर फाइनली हमने ट्राई किया शॉक देते। सो एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम हैव कंबाइंड विद समथिंग, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बोनेट, और वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि कुछ भी करो टूटेगा नहीं, बट करंट दिया तो टूट जाता। देयरफॉर इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इज यूज्ड as a method to purify them. Let's read the third category, metals high in the activity series. Metals high up in the reactivity series are very reactive. They cannot be obtained from their compound by heating with carbon. सिर्फ कार्बन से गर्म करोगे, कार्बन के साथ तो कुछ नहीं होगा। Carbon cannot reduce the oxide of sodium, magnesium, calcium, aluminium. This is because these metals have more affinity for oxygen than carbon. These metals are obtained by electrolytic reduction. For example, sodium, magnesium, calcium are obtained by electrolysis of their molten chlorides. Pure sodium metal चाहिए तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट लेके उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करो।
ये देखो, एनोड, कैथोड. So this is how electrolysis works. It's not given nicely in your textbook. ये है, but ये कॉपर के लिए और रिफाइनिंग है. So I'm going to show you what is electrolysis. Better is if you draw one for yourself also. कार्बन के दो रॉड्स लिए जाते हैं, कार्बन रॉड, and they are attached to the battery, positive and negative terminal. If it is positive terminal, it's called anode plus, and negative it's called cathode. ये रॉड के नाम है. ये बैटरी वायर और रॉड को एक बीकर में डिप किया जाता है, एक कंटेनर में डिप करते हैं, जिसके अंदर क्या है, मोल्टन NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, तीसरा कौन सा था, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2. कोई भी एक रखो एंड स्टार्ट द इलेक्ट्रिसिटी. द मिनट यू स्टार्ट द इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट हैपेंस एट कैथोड? सोडियम आयॉन्स accept one electron from the cathode and become pure sodium. और एनोड पे क्या होगा, क्लोरीन आयॉन्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम क्लोरीन गैस. तो लिटरली जब तक इलेक्ट्रिसिटी चालू है, एनोड पे क्लोरीन गैस इज बीइंग रिलीज्ड कॉन्स्टेंटली, और कैथोड पे सॉलिड सोडियम चिपक रहा है. और ये सोडियम और ये क्लोरीन आ कहां से रहा है, फ्रॉम दिस मोल्टन NaCl लिक्विड. तो जितना लिक्विड डालोगे उतना अलग होगा. NaCl की जगह KCl डाला तो पोटेशियम विल स्टिक हियर एंड क्लोरीन गैस विल बी रिलीज्ड. सो रिमेंबर दिस स्मॉल इक्वेशन, that what happens at anode and cathode when electricity is started. The metals, objective question है, the pure metals are deposited at the cathode which is negatively charged electrode. देखो फिगर में मैंने कोई गलती की है. Pure metals are deposited at cathode which is negatively charged electrode, minus cathode pure metal, and chlorine gas is released at anode which is positively charged electrode, and this is called electrolytic reduction, which is used for sodium, potassium, calcium and aluminium. तो जो जिद्दी होते हैं उनको शॉक देना पड़ता है तो वो अलग होके प्योर बनता है. क्या क्या किया हमने. मेटल्स कैन बी लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, कैन बी इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज एंड कैन बी एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज. लो वालों को सिंपल हीटिंग काफी है. हीट इट, उसके ऑक्साइड में से प्योर मेटल बन जाएगा हंसते खेलते, एंड इट इज कॉल्ड रिडक्शन. To be precise, your textbook is worst, I tell you, compared to the old textbook. कुछ डिटेल में नहीं दिया, सब ऊपर ऊपर से आधा अधूरा टूटा फूटा. मेटल्स जो इजीली रिड्यूस होते हैं जस्ट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल रिडक्शन. थर्मल रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन भगाओ, गर्मी बढ़ाओ. बट मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में देर आर टू ऑप्शंस. Is it a sulfide ore? Is it a carbonate ore? If it's a sulfide ore, तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रोस्टिंग करो. एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रोस्टिंग करो तो वो क्या बन जाएगा, ऑक्साइड. और वो ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिड्यूस करो, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिडक्शन. हमने कार्बन यूज किया है
हीट नहीं, केमिकल रिडक्शन, थर्मल रिडक्शन का भाई। बट अगर कार्बोनेट ओर है तो विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन यू हैव टू हीट इट। दिस इज विथ यूजिंग ऑक्सीजन यू आर हीटिंग। Without using oxygen, when you heat, it is called calcination. And calcination से भी क्या बनेगा? ऑक्साइड, और वो ऑक्साइड का होगा केमिकल रिडक्शन, यू गेट प्योर मेटल। बट टॉप वाले जिद्दी होते हैं, और ये जिद्दी ऑक्साइड्स को अलग करने के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ती है, थर्मल और केमिकल नहीं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। बट हमने जमीन में से बहुत सारे ओर निकाल के बहुत सारे मेटल्स को प्योरीफाई किया। टॉप ऑफ द इलेक्ट्रिक रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। मिडल वाले में फी, पेमेंट, जून में करो, याद है, आयरन, लेड, जिंक, कैल्शियम। और इजी में कौन था? जिंक था, मैं थी, तुम था, कौन था पता नहीं, जो भी है। इन शॉर्ट दे ऑल आर 99% प्योर। अभी भी उनमें 1% कचरा बाकी है, कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज है, और ये इंप्योरिटी भगा के 100% प्योर मेटल बनाने के लिए द लास्ट स्टेप इज कॉल्ड रिफाइनिंग। रिफाइनिंग इज द फिनिशिंग टच। प्योरीफाई हो चुका है, अब हम उसको रिफाइन करेंगे। एंड रिफाइनिंग मेथड इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, विच इज सेम एज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, वेरी सिमिलर। इलेक्ट्रिसिटी पास करके 100% प्योर कर देना। मेनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड are refined electrolytically. In this process the impure metal is made anode. By heart this, तुम्हारा 99% प्योर मेटल, 100% नहीं है ना, इम्प्योर है, वो एनोड पे लगाओ। और एनोड मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड बैटरी। और प्योर मेटल का एक पतला स्ट्रिप लेना पड़ेगा और उसको कैथोड पे लगाओ, विच इज माइनस। बाय हार्ट दिस, एनोड पे कौन, कैथोड पे कौन। लुक एट दिस, मैंने कॉपर को प्योरीफाई किया, बट नाउ आई वांट 100% प्योर कॉपर। तो 99% प्योर कॉपर एनोड पे आएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड 100% प्योर कॉपर पुराने लॉट में से विल बिकम द कैथोड, पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज्ड। And I will fill the container with some liquid, but it has to have copper sulfate solution. Anode made up of copper, cathode made up of copper, solution has copper, चारों तरफ कॉपर ही कॉपर है। बट मेरा टारगेट है कि ये 100 किलो का है, 100 kg, बट इट इज 99% प्योर, और मुझे चाहिए 100% प्योर जो सिर्फ 1 kg है, जो मैंने मंगाया है कहीं से स्पेशल। नाउ आई स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक करंट। धीरे धीरे क्या होगा? प्योर कॉपर विल स्टार्ट जंपिंग इनटू सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से 100% प्योर कॉपर आयंस लिक्विड के अंदर जंप करते हैं, और अगर 4 कॉपर आयन लिक्विड में जंप करते हैं तो सेम साइड 4 कॉपर आयन फ्रॉम द लिक्विड जंप्स ऑन टू दिस प्योर बार। तो कोई मुझे पूछे कि कैथोड के ऊपर क्या जमा हुआ, तो मैं कहूंगा प्योर कॉपर जमा हुआ, क्योंकि ओनली कॉपर कैन जंप इन द लिक्विड, and from liquid only copper can jump to the cathode. So 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा
20 घंटे के बाद ये 100 kg कॉपर पूरा का पूरा यहां पे डिपॉजिट हो गया और जो 1% इम्प्योरिटी थी, कचरा था, वो सारा कचरा नीचे जमा हो गया, इम्प्योरिटीज, विच इज कॉल्ड एनोडिक मड। एक बार खुद ड्रॉ करो, बिना देखे तो समझ में आए। कंटेनर which has a thick, big 99% pure bar of copper, which is anode, which is positively charged, attached to the battery. Battery is big line, small line ऐसा होता है, and a small rod which is 100% pure copper. And it is filled with solution of copper sulfate. Then you switch on the current. Copper from 99% pure will jump into solution, और solution में से it will jump onto here. But बीच बीच में जो impurities है वो finally नीचे गिर जाएगी और नीचे जमा होगी. That is called anodic mud, and that's how you get 100% pure copper by the method of electrolysis or electrolytic refining. कोरोजन, टॉपिक चेंज। हमको सारे प्योर मेटल मिल गए, अब वो मेटल रस्ट करते हैं, तो कोरोजन से कैसे बचा जाए? तो कोरोजन से बचने के लिए थोड़े थोड़े नुस्खे दिए, वो बाय हार्ट कर लो। इट्स अ सिंपल टॉपिक। हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन। सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक हो जाता है, दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट्स विद सल्फर इन द एयर। याद है मैंने कहा था सिल्वर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड बिकम्स ब्लैक इन द वेरी फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ चैप्टर, बट वो गलत था। सिल्वर पड़े पड़े काला होता है, नॉट बाय रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सिल्वर रिएक्ट्स विद द सल्फर इन द एयर। और हवा में सल्फर आता है पोल्यूशन से, जितना ज्यादा पोल्यूशन उतना काला सिल्वर, बिकॉज इट बिकम्स सिल्वर सल्फाइड। दिस इज कॉल्ड कोरोजन। Copper reacts with moist carbon dioxide and slowly loses the shiny surface and becomes greenish. ये भी मैंने कहा था first 10 minutes में। What is corrosion? Copper becomes green, silver becomes black. But copper oxygen के साथ नहीं react करता है, it reacts with moisture वाला carbon dioxide. And that green substance is called copper carbonate. And iron when exposed to moist air becomes brown, which is called rust, which is iron oxide. तो ये याद रखने वाली चीज है, सिल्वर सल्फर के साथ रिएक्ट करता है और एक ब्लैक लेयर बन जाता है। कॉपर मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब पानी भी चाहिए, और ग्रीन कोटिंग बन जाता है। एंड आयरन नीड्स मॉइस्ट ऑक्सीजन, मीन्स पानी चाहिए, and becomes brown rust. That's rust. And how to prevent rust का एक मस्त एग्जाम्पल है। पानी, हवा, रस्ट हो गया आयन। बट यहां पे देखो, पानी तो है बट उसके ऊपर तेल का एक लेयर। सो इस खिल्ली के लिए पानी तो अवेलेबल है बट हवा अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ऑयल डज नॉट अलाउ द एयर टू गो इनसाइड, विच मीन्स कोट योर मेटल विथ ऑयल, तो उसको हवा टच नहीं करेगी, और हवा टच नहीं करेगी तो रस्ट नहीं होगा। और यहां पे ड्राई एयर बिकॉज कैल्शियम क्लोराइड करके केमिकल रखा है जो मॉइस्चर सक कर लेते,
all the water is sucked, there is no moisture, there is just air, मतलब ऑक्सीजन है, पानी नहीं है, पानी है, ऑक्सीजन नहीं है, दोनों है. So this is an activity of finding out what is necessary for iron to rust. Two things: air, which provides oxygen, and water. हवा और पानी में से कोई भी एक चीज हम बंद कर दे तो आयन विल स्टॉप रस्टिंग. दैट्स द क्रक्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. एंड हाउ डू यू प्रिवेंट कोरोजन? मेक अ प्रेसी ऑफ दिस. The best way of preventing rusting of iron is paint the iron, apply oil, apply grease, galvanizing, chrome plating, anodizing. एनोडाइजिंग लास्ट लेक्चर में एक पैराग्राफ के अंदर आया था. एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना के उसको कोट करते, दैट्स एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम. बट गैल्वेनाइजिंग एंड क्रोम प्लेटिंग इज गिवन हियर इन दिस पैराग्राफ. दैट्स हाउ यू कैन प्रिवेंट कोरोजन. Galvanization is a method of protecting steel and iron from rusting by coating them with thin layer of zinc. आयन के ऊपर जिंक चढ़ाओ या स्टील के ऊपर जिंक चढ़ाओ, पतला कोट, that's called galvanized steel or galvanized iron. And galvanized irons are protected from rusting even if the zinc coat is broken. जिंक मस्त कोट कर दो, फिर स्क्रैच पड़ गया, जिंक का कोटिंग फट गया तो भी चलेगा, बिकॉज जिंक लव्स टू गेट रस्टेड. तो जब हवा और मॉइस्चर नजदीक आते हैं कि चलो हम रस्ट करने आए हैं, बोलो कौन है यहां पे, तो आयन को साइड में करके जिंक आ जाता है. मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं. हर बार जिंक बोलता है मैं. ओनली जिंक गेट्स रस्टेड. तो जो मेन आर्टिकल है आयन का, उसको कुछ नहीं होता. दैट्स कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन. जिंक sacrifices itself and rusts so that our iron and steel does not rust. Alloying is the next technique. Alloy मतलब दो तीन मेटल को मेल्ट करके मिक्स कर दो तो वो बेटर बन जाए. Alloying is a very good method of improving the properties of metal. We can get the desired properties by this method. For example, iron. Iron सबसे ज्यादा यूज होता है, but it is never used in pure form because iron is soft. Soft iron cannot be used to build bridges. तो क्या यूज करते हैं? प्योर आयन नहीं यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? प्योर आयन इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेस वेरी इजीली व्हेन इट इज हॉट. Solution is make an alloy out of it. How? First option, mix 0.05% कार्बन. प्योर आयन के अंदर 0.05% कार्बन डालो तो इट बिकम्स हार्ड, इट बिकम्स strong. Option number 2, iron is mixed with nickel and chromium तो वो स्टेनलेस स्टील बन जाएगा, which is hard and does not rust. तो आयन को कुछ 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 मिक्स करते रहो तो प्रॉपर्टीज बदलती रहती है. जो प्रॉपर्टीज अच्छी लगे वो यूज करो. एंड दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड alloying, which is better than using pure iron because pure iron corrodes, rusts, and that is bad for the object. You can mix metal also, you can mix non-metal also, तुम्हारी मर्जी. An alloy, definition of alloy. What is an alloy? An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or metal and a
नॉन मेटल जिसको पहले मेल्ट करते हैं और फिर ठंडा करके यूज करते हैं. सो मेल्ट मेटल्स, नॉन मेटल्स, मिक्स इट एंड देन यूज इट. इट्स कॉल्ड एलॉय. Gold cannot be used pure. Pure gold is called 24 karat gold. But again, the problem is 24 karat gold is weak. 24 karat gold is soft. तो जो शेप है तुम्हारी ज्वेलरी का वो खराब हो जाएगा. Therefore, what to do? Take 22 parts of gold and mix 2 parts of copper or silver. और अगर कॉपर सिल्वर मिक्स किया तो फ्रॉम दैट डे इट विल बी कॉल्ड 22 कैरेट गोल्ड. अकॉर्डिंगली चार्ज द प्राइस, बट एटलीस्ट 22 कैरेट गोल्ड विल नेवर चेंज इट्स शेप बिकॉज इट इज नॉट सॉफ्ट, इट इज नॉट वीक. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एलॉय. एंड one of the metals is mercury, then the alloy is known as amalgam. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. आयन प्लस मर्क्यूरी, इट्स कॉल्ड अमालगम ऑफ आयन. कॉपर मर्क्यूरी, इट्स कॉल्ड अमालगम ऑफ कॉपर. तो जहां पे मर्क्यूरी इन्वॉल्व है इट इज कॉल्ड अमालगम. द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन अलॉय इज लेस देन प्योर मेटल. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. ये पहला ऑब्जेक्टिव अमालगम, दूसरा ऑब्जेक्टिव एलॉय is less than metal. Electric conductivity and melting point. Electric conductivity and melting point is less of an alloy than pure metal. Example, brass. Brass is an alloy of copper and zinc. मतलब copper plus zinc is called brass, and that brass has lower electric conductivity and melting point than original copper zinc. Bronze is an alloy of copper and tin. Copper और tin को मिक्स करो तो बनेगा bronze. They are not good conductors of electricity. Less electric conductivity. So alloy brass is made up of copper and zinc. Properties of electric conductivity is less. Bronze is also made up of copper and tin. Electric conductivity is less than copper. Solder is an alloy of lead and tin. Solder is an alloy of lead and tin, Pb or Sn, and it has lower melting point and it is used for welding electric wires together. तो मेटल नॉन मेटल में 3 एलॉयज के स्पेशल नाम और एक स्पेशल प्रॉपर्टी दैट ब्रास एंड ब्रोंज हैव लेस इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी देन कॉपर, और दूसरा सोल्डर हैज लेस मेल्टिंग पॉइंट देन लेड और टिन, एंड देयरफॉर सोल्डर इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग वायर्स. बहुत इजीली मेल्ट हो जाता है तो छोटे छोटे वायर्स को ज्वाइन करने के लिए यूज होता है. दिस इज नथिंग, जस्ट अ बॉम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन. दिस इज नॉट अ बिग क्वेश्चन और अ टॉपिक. दिस इज नथिंग टू डू विद कोरोजन ऑल्सो. इट्स जस्ट information bombarded on you. Same like this, Qutub Minar is a 1600-year-old pillar which is purely made up of iron but does not rust. And it's a secret. We don't know that how this big pillar of iron does not rust. The end. तो आज मेजर टॉपिक्स में क्या किया, रस्टिंग क्या होता है एंड हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग, विच इज गैल्वेनाइज इट, पेंट इट, ऑयल इट, एनोडाइज इट, एलॉय, जिसके ऊपर काफी बड़ा भाषण था. रस्टिंग के पहले किया
रिफाइनिंग, रिफाइन मतलब 99% प्योर से 100% प्योर की जर्नी जो इलेक्ट्रोलिसिस करके की जाती है, जिसमें कॉपर का एग्जाम्पल है विथ फिगर। रिफाइन तब करोगे जब तुम्हें मेटल्स मिलेंगे, और मेटल तब मिलेंगे जब तुम 3 पैराग्राफ समझोगे, लो, मिडल, टॉप। लो सिंपल रिडक्शन, थर्मल रिडक्शन, गरम करो और छुट्टी। यहां पे सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन। और रोस्टिंग कैल्सिनेशन दोनों का एंड प्रोडक्ट है ऑक्साइड, और ये ऑक्साइड को कार्बन से रिड्यूस करते हैं, कॉल्ड केमिकल रिडक्शन। थर्मल रिडक्शन, केमिकल रिडक्शन। और ये इतने जिद्दी है कि इलेक्ट्रिक शॉक दिए बगैर हिलेंगे नहीं। और इसके पहले एक छोटा टॉपिक था रिएक्टिविटी सीरीज का। सो ओवरऑल दिस चैप्टर इज एंडेड। मेक योर ओन प्रेसी एंड ट्राई टू रिमेंबर every single word from the chapter. Thank you.